Mr. President, speaking of Minneapolis, what did you learn? I learned that maybe we can use a little bit of a softer touch. Well, look, I'm not happy with the two incidents. It's not, it's both of them. Big change on immigration, 700 officers leaving Minneapolis. Did that come from you? Yes, it did. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल सब वधिया ते कमाल। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया जिसके अंदर उनसे सवालात किए गए, खास करके जिस तरह से मिनेसोटा मिनियापोलिस में US सिटीजन की जान गई, लोगों को मारा गया, गोलियां मारी गई, जिस तरह से फेडरल एजेंट्स काम कर रहे थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही 700 एजेंट्स को मिनियापोलिस मिनेसोटा छोड़ने को कह दिया गया और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे मालूम है कि जो ये दो सैड इंसिडेंट हुए हैं, बेसिकली जो एलेक्स प्रिटी और रेनी निकोल गुड, 2 US सिटीजन की जान गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट को भी बैकअप किया। उन्होंने कहा कि हमारे आईएस के एजेंट, हमारी फेडरल एजेंट्स, पुलिस, ये सब देश में जो क्राइम हो रहे हैं, जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। तो इन लोगों को टफ रहना पड़ता है और इसीलिए मुझे भी इनको बैकअप करना है, क्योंकि अगर हमने इनको बैकअप नहीं किया तो देश नहीं रहेगा। But it didn't come from me because I just wanted to do it. We are waiting for them to release prisoners, give us the murderers that they're holding, and all of the bad people, drug dealers, all of the bad people. We allowed in our country, I say 25 million people with an open border policy for 4 years under Biden and that group, the Autopen group, I call them. We allowed to come into our country people the likes of which no country would accept. And we're getting them out, but we've gotten a lot of them out. So crime now in Minnesota, crime now in Minneapolis is down. Crime in all cities is down. उसके बाद रिपोर्टर ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन किया कि मिनियापोलिस में, मिनेसोटा में जो चीज़ें हुई उससे आपने क्या सीखा। उसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस जवाब को देते हुए थोड़ा सा वक्त लिया। उन्होंने कहा बिल्कुल हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन हमें टफ बने रहना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहे हैं। Mr. President, speaking of Minneapolis, what did you learn? I learned that maybe we can use a little bit of a softer touch, but you still have to be tough. These are criminals. We're dealing with really hard criminals. तो आज आके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन क्या करें, अब वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कमांडर इन चीफ हैं। तो अगर वही लॉ इन्फोर्समेंट की बैकअप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और साथ ही साथ अगर वो बैकअप ना करें तो फिर देश कैसे बचेगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनकी साइड भी ली। After the shooting of Renee Good, you said ICE made some mistakes. What were the mistakes? Well, look, I'm not happy with the two incidents. It's not, it's both of them, not one or the other. He was not an angel. And she was not an angel. You look at some tapes from back, but still, I'm not happy with what happened there. Nobody could be happy, and ICE wasn't happy either. But I'm going to always be with our great people of law enforcement. ICE, police, we have to back them. If we don't back them, we don't have a country. उसके बाद रिपोर्टर ने कहा कि जिस तरह से आपने मेंशन किया रेनी निकोल गुड और एलेक्स प्रिटी कि वो एंजल नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनकी जान ले ली गई, क्या उस चीज़ को आप जस्टिफाई करते हो? सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बिल्कुल नहीं, जो हुआ है गलत हुआ है और कोई भी खुश नहीं है इस इंसिडेंट से, ये होना नहीं चाहिए था। You mentioned Renee Good and Alex Peretti not being angels. Do you think any of that justified what happened to them, though? No, I don't. It should have not happened. It was a very sad, to me, it was a very sad incident, 2 incidents. And, they mentioned the one now, they don't mention the other. Well, I think they were both sad. And who feels worse about it than anybody? The people of ICE. लेकिन वहीं फिर उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनकी साइड भी दी। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा दर्द आइस ऑफिसर्स को हुआ है, आइस एजेंसी को हुआ है। जिस तरह से 2 लोगों की जान चली गई, US सिटीजन की जान चली गई, तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा दुख आइस वालों को ही हुआ है। They're strong, tough people, and they have to be tough because we're dealing with hardened criminals. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइस के जो एजेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो स्ट्रांग हैं, टफ हैं, उनको टफ रहना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहे हैं। हम लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जिस तरह से
पिछली गवर्नमेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने तीर चलाया। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से, ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से मिलियंस में लोग अमेरिका में आए, बाहर की जो जेल्स थी वो खाली हो गई हैं और सारे लोग हमारी कंट्री में आ गए, ऐसा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो अगर ऐसे लोगों के साथ डील करना है तो आपको टफ होना पड़ेगा। इसीलिए आईएस के एजेंट्स टफ हैं, स्ट्रांग हैं। और उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि 125 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि क्राइम जो रेट है वो कम हुआ है अमेरिका के अंदर, ऐसा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया इस इंटरव्यू में। We're dealing with people, jails have been emptied into our country from all over the world, from Venezuela, where we had great success, you will admit, but from Venezuela, from the Congo in Africa, from all over the world. Jails, the jail population was emptied into our country. If we don't have strong people, you're not getting them out, and we're getting them out. Remember this, again, I say it again and again, we have record low crime in the United States. Nobody's been able to say that for 125 years. So प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का तो क्लियर है, वो उन्होंने माना कि जिस तरह से भी ऑपरेशन किया गया, लोगों की जानें गई, जान नहीं जानी चाहिए थी। लोगों ने फिर आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, काफ़ी यूएस सिटीजन के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ। अब हमें इमिग्रेशन शिफ्ट देखने को मिलेगा मिनियापोलिस के बाद। अब जैसे 700 फेडरल एजेंट्स को वहाँ से निकाल दिया गया है, तो ये हमें एक तरह का देखने को मिल रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सरकार, वो भी अब थोड़ा सा बैकफुट आ रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि भाई थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉफ्ट नहीं हुए, अगर इस तरह से अमेरिकन सिटीजन की ही जान जाती रहेगी तो फिर सत्ता में बने रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। उन्होंने दोनों पक्षों को देखा, जिनकी जान गई, जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, और उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी बैकअप किया। दोस्तों, अब देखना बस यही है कि अब आगे हमें क्या देखने को मिलता है। मैं होप यही करता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें डीएस्केलेट हो, सभी चैन से पीसफुली रहना चाहते हैं। कोई नहीं कह रहा कि क्रिमिनल्स को ना पकड़ो, क्रिमिनल्स को पकड़ो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे चलते फिरते लोगों को जिस तरह से फेडरल एजेंट्स ट्रीट कर रहे थे, एक्सेंट देख के, स्किन कलर देखकर, वो बंद होना चाहिए। इसीलिए यूएस सिटीजन ने आवाज़ उठाई और वो आवाज़ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक पहुंची। अब तो आप कैसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में चल दें,